Good morning, students. Today we are going to continue from paragraph 9, which is on page number 22 of the chapter The Starting Point, which we have studied in our previous videos. So we'll continue from paragraph 9. Till now we have studied that how Milkha Singh, he was on his way to achieve success as an athlete. We have studied that there were three main important events in his life that led to his becoming of an athlete. But we have studied some part of it, that he used to run a 6 miles race, and other than the 6 miles race, once he was given to run a 400-meter race, and he did not have an idea that how long is 400 meter. Is it less than 6 miles or is it more than 6 miles? He did not have that idea. So that much we have studied. Now we'll continue from paragraph 9. I was very nervous when we reported at the starting line before the race. This was the first time I was competing in such an event, and that too before thousands of spectators. I had little idea about the procedures and technicalities for such events. So what happens that Milkha Singh, he is to run a race, as we have studied, but he was very nervous. He reported, all of the participants, they all reported at the starting line before the race, and this was the first time that he was competing in such a large event, in such a widely organized event. एंड बहुत सारे स्पेक्टेटर्स थे उनके सामने. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स मींस देखने वाले, दर्शक, ठीक है. तो बहुत सारे स्पेक्टेटर्स थे उनके सामने. और आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीजर्स एंड द टेक्निकलिटीज फॉर सच इवेंट्स. तो मिल्खा सिंह को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. ही वॉज ऑलमोस्ट नम. उनको ये सब पता नहीं था कि कैसे जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं रनिंग के, एथलीट्स के, वो सब क्या होते हैं. उन्हें बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं, आइडिया नहीं था. वो कभी ऐसे रेस में इससे पहले दौड़े नहीं थे, तो उन्हें बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था कि कैसे दौड़ना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं दौड़ने के, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द रेगुलेशंस, ठीक है. ऑल दैट थिंग ही डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So he runs, and I came fourth in the race. I was disappointed but not disheartened. I had raced with star athletes, the national champion Sohan Singh of the Sikh regiment and Pritam Singh, who had represented India in events abroad. तो क्या होता है कि मिल्खा सिंह इस रेस में दौड़ते हैं, and he stood fourth in the race. Not first, not second, not third. He stood fourth in the race. He was disappointed. He was not very happy with himself. वो अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं थे. He was disappointed. उन्हें लगा कि वो और बेटर कर सकते थे. But he was not disheartened. मतलब वो ऐसे नहीं हुए कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा. वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे. उनको लगा कि वो और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं टूटा, बिकॉज ही वॉज फोर्थ. उन्होंने स्टार एथलीट्स के साथ रेस किया था. वन वॉज द नेशनल चैंपियन सोहन सिंह. तो जो जिन एथलीट्स के साथ उन्होंने रेस किया था, उनमें से एक था सोहन सिंह. ही वॉज द नेशनल चैंपियन. मीन्स नेशनल मीन्स नेशन का चैंपियन था वो. ही वॉज द नेशनल चैंपियन इन रनिंग. द नेम वॉज सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट. सिख रेजिमेंट से ही वॉज द नेशनल चैंपियन. एंड प्रीतम सिंह, हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स अब्रॉड. और एक और महारथी रेस के जो थे वो थे प्रीतम सिंह. एंड प्रीतम सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल रेसेस में, ठीक है. सो दीज वर द एथलीट्स हु वर फार बेटर देन मिल्खा सिंह. एंड सो मिल्खा सिंह स्टूड फोर्थ. और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत हाई था, ठीक है. जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ जो लोग रन करने वाले थे, दे वर वेरी ट्रेन्ड and of much higher level than Milkha Singh himself. I came fourth in the race. I was disappointed but not disheartened. We have to continue from paragraph 11. When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. फिर इस रेस के बाद वो वापस से हैदराबाद जाते हैं. इट वॉज बैक टू वर्क एज यूजुअल. फिर से वो आर्मी ज्वाइन करते हैं. उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी ना आर्मी में, हमने पढ़ा था शुरू में.
सो फिर से वो आर्मी ज्वाइन करते हैं. There were parades, other military duties and examinations that consumed his time. So parades होते थे, जैसे आर्मी के परेड्स की प्रैक्टिस होती है, परेड्स होते थे, मिलिट्री ड्यूटीज होती थी अलग अलग, हमने पढ़ा था ना, फटीग ड्यूटी वगैरह, तो ये सब ड्यूटीज होती थी, और एग्जामिनेशंस, इन सब की वजह से वो प्री कंज्यूम थे, मतलब उनका टाइम कट जाता था. ही वॉज वेरी बिजी इन ऑल दीज, सो ही डिड नॉट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस. But my desire to succeed as an athlete was as strong as ever. लेकिन मिल्खा सिंह, more than an army person, he wanted to be an athlete. उनको एक athlete बनने का मन था, और it was more than any other thing. He wanted to be an athlete more than any other thing. After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed. तो क्या होता है कि जो पूरे दिन का काम होता है, उसके बाद मिल्खा सिंह क्या करते हैं कि उनको जब डिनर मिलता है, जब खाना परोसा जाता है उनको, तो वो अपनी प्लेट ऑफ फूड लेके, जहां वो रहते थे, जहां पे सोल्जर्स रहते हैं उसको बैरक्स कहते हैं, तो वहां पे जाके वो अपनी डिनर की प्लेट अपने बेड के नीचे छुपा के रख देते थे. एंड When my colleagues relaxed in the evening, जब मिल्खा सिंह के बाकी जो कलीग्स थे, जो बाकी आर्मी मैन थे, जो बाकी रिक्रूट्स थे, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी आर्मी में, जब वो सब रिलैक्स कर रहे होते थे, what would मिल्खा सिंह do? I would be running at the ground. I would be at the ground practicing. तो वो अपने जो उनका ग्राउंड था, जो फील्ड थी, उस पे वो प्रैक्टिस करते थे, उस पे वो रनिंग की प्रैक्टिस करते थे. ठीक है. I still did not know the techniques needed to run a 400-meter race. उनको अब भी 400-meter race कैसे दौड़ें, क्या टेक्निक्स होती हैं उसकी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सब नहीं पता था. But I followed a rule of thumb. I would run one round at the highest speed possible, rest for a while and then run another one. तो उन्होंने rule of the thumb follow किया. Rule of the thumb means a rule based on experience. वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखने लगे. वो पहला राउंड लगाते थे एट द हाईएस्ट स्पीड. व्हेन ही यूज्ड टू रन द फर्स्ट राउंड ऑफ द फील्ड, ही वुड रन एट द हाईएस्ट स्पीड एंड देन रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते थे, एंड देन रन अनदर वन, और उसके बाद फिर दूसरी राउंड वो रन करते थे. आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर. तो उसके बाद क्या होता था, वो 5 या 6 राउंड जैसे दौड़ लेते थे, उसके बाद ही वुड रिटर्न टू हिज रूम, वो अपने रूम पे वापस आते थे, नहाते थे, एंड देन ही वुड हैव हिज डिनर विच ही यूज्ड टू कीप अंडर द बेड. दिस वॉज माई रूटीन फॉर मेनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ. तो ये जो है, ये ऐसे दौड़ना, दिन भर का काम, फिर खाना छुपा के रख देना, फिर जाना प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके आके नहा के वापस से खाना, फिर रेस्ट करना, दिस बिकेम हिज रूटीन. ये उनका दिन भर का शेड्यूल यही हो गया फॉर मेनी मंथ्स. ओके. एंड इस एक्टिविटी के बारे में कोई जानता नहीं था. Nobody was aware of it. One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier S.P. Vohra spotted me. He was on his after dinner walk. तो ब्रिगेडियर कौन होता है? ब्रिगेडियर इज अ हायर पोस्ट इन द आर्मी. ओके. सो एक दिन ये अपनी रेगुलर प्रैक्टिसिंग कर रहे थे, तब तक ब्रिगेडियर S.P. वोहरा वहां आए एंड उन्होंने मिल्खा सिंह को देखा. He was on his after dinner walk. तो वो भी ब्रिगेडियर S.P. वोहरा, वो भी डिनर करने के बाद वॉक पे गए थे. Why are you on the grounds at this hour? He asked sharply. तो ब्रिगेडियर S.P. वोहरा अपने एकदम अलग से टोन में, एकदम इंक्वायरी वाले टोन में, पूछताछ वाले टोन में मिल्खा सिंह से पूछते हैं कि तुम इस टाइम पे ग्राउंड पे क्या कर रहे हो. ठीक है. Sir, I said, clicking my heels and snapping to attention. तो वो बताते हैं कि क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग माई अटेंशन मीन्स ही वॉज रनिंग एंड हाफ रहे थे वो, चूंकि वो दौड़ के आए थे, तो ही वॉज ऑब्वियसली पैंटिंग. उस टाइम क्या होता है कि अपना अटेंशन उनके क्वेश्चन की ओर ले जाके मिल्खा सिंह उन्हें बताते हैं, आई ट्राई टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर. ठीक है. तो क्या होता है कि मिल्खा सिंह जो है वो एकदम भाग के आए हुए होते हैं, तो ही वॉज स्वेटिंग, ही वॉज पैंटिंग, वो हाफ रहे थे, उनको पसीने हो रहे थे. ही सेड, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400-meter रेस. तो मिल्खा सिंह उन्हें बताते हैं कि मैं 400-meter रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिसिंग, व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर? तो जो ब्रिगेडियर रहते हैं वो पूछते हैं, वोहरा साहब पूछते हैं कि तुम इस
टाइम पे प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर? मीन्स व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस टाइम इन द नाइट? ही आस्क्ड साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड या फिर इन क्वेश्चनेबल वे. Because I don't have time to practice during the day, sir, I replied quietly. तो मिल्खा सिंह उन्हें बताते हैं, सर मैं इस टाइम इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता है प्रैक्टिस करने का. He stared at me, then nodded and walked away briskly. तो क्या करते हैं, जो ब्रिगेडियर एसपी वोहरा रहते हैं वो मिल्खा सिंह की तरफ देखते हैं, कहते हैं बात तो सही है, दिन में तो इतना काम रहता है, कहाँ से कोई प्रैक्टिस करेगा. He nodded. He understood what मिल्खा सिंह was saying. He nodded and then walked away. फिर वो चले जाते हैं. I felt quite relieved that I had been let off easily. तो मिल्खा सिंह काफी रिलीफ फील करते हैं कि उनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ इंक्वायरी नहीं हुई. उन्होंने उनको डांटा नहीं, मिल्खा सिंह को डांटा नहीं, कुछ भी ऐसा कहा नहीं, वो बस चले गए वहां से. तो मिल्खा सिंह was feeling relieved. This meeting led to a series of actions that I had never anticipated. ये जो उनकी ब्रिगेडियर एसपी वोहरा से मुलाकात थी, ये कुछ ऐसे इवेंट्स के साथ आई जो मिल्खा सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था. नेवर एंटिसिपेटेड मीन्स नेवर एक्सपेक्टेड. द नेक्स्ट डे द कमांडर ऑफ माई कंपनी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू डू फटीग ड्यूटी एनी मोर. तो जो मिल्खा सिंह के कमांडर रहते हैं वो अगले दिन मिल्खा सिंह को बताते हैं कि ऐसा है, तुम्हें फटीग ड्यूटी करने की और जरूरत नहीं है, यू आर डन विद इट. This gave me more time to practice. Now Brigadier Vohra must have spoken to the commander. Brigadier Vohra ने कमांडर से बात की होगी, कहा होगा कि वो रात में प्रैक्टिस करता है. Give him some time in the morning. Let him off from the fatigue duty. तो fatigue duty से उन्हें आजाद कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं. उन्हें अब करना नहीं पड़ता फटीग ड्यूटी. दिन भर का जो क्लोथिंग वॉशिंग ये सब होता है, कुकिंग, ये सब उन्हें करना नहीं पड़ता. ठीक है. So now he gets more time to practice running. This gave me more time to practice. I was given better facilities, a nutritious diet and special attention was paid to my grooming. तो क्या होता है अब कि मिल्खा सिंह को अब ज्यादा टाइम मिलने लगता है प्रैक्टिस का. मिल्खा सिंह दौड़ने के इतने there's that passion in him to run, to become an athlete, an international level athlete. So he was given special attention. उनको ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है बाकी के रिक्रूट्स से, बाकी के आर्मी रिक्रूट से. एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग. एंड स्पेशल अटेंशन मीन्स अलग से ध्यान दिया जाता था कि उनको वर्ल्ड क्लास एथलीट कैसे बनाया जाए, उनको एकदम परफेक्ट एथलीट, परफेक्ट रनर कैसे बनाया जाए. This incident opened up a whole new world for me, one that offered innumerable opportunities. तो इसके बाद क्या हुआ, वो एसपी वोहरा से मिले. ठीक है. SP Vohra requested the commander, told the commander that मिल्खा सिंह should be given more time to practice. एंड उसके बाद मिल्खा सिंह की ट्रीटमेंट बाकी आर्मी के रिक्रूट से अलग तरीके से होने लगती है. ही वॉज गिवन मोर अटेंशन, मोर फैसिलिटीज, अ न्यूट्रिशियस डाइट, अ मोर न्यूट्रिशियस डाइट देन द अदर्स. ये सब उनके साथ होता है. एंड उनको टेक्निक्स एंड स्किल्स बताए जाते हैं 400 मीटर रेस रन करने की. दिस इंसिडेंट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी. इस इंसिडेंट के बाद उनके सामने बहुत एक जैसे कहते हैं ना खुला हुआ आसमान उनको मिल जाता है. वो अपनी विशेज, अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हैं टू बिकम एन इंटरनेशनल लेवल एथलीट. एंड this offered him innumerable opportunities. Innumerable means uncountable opportunities उनको मिलने लगी इसके बाद धीरे धीरे. ठीक है. So we have completed the chapter. If you have any problem, then put it down in the comment section of the video. And in our next class, we will be doing the word meanings and question answers of the chapter. I'll be sending you the PDF. Thank you, students. Have a good day.